So yesterday we had started the chapter A Letter to God, the first chapter of First Flight. I told you the theme of this chapter. What was the theme? Faith can move mountains. What is the meaning? That if you have a strong faith, if you have a strong belief, if you have great zeal, positive attitude, killer instinct, whatever you have decided, I will do it. So what the conditions are? I have to achieve my goal. If you have this spirit, so definitely you can move mountains. Yesterday we had discussed all these things. I had started the chapter also. I told you that the whole lesson revolves around two characters. Who are these two characters? Lencho and the postmaster. What were the characteristics of Lencho? Yesterday I told you that he is very hardworking man. He is an ox of a man. He is very simple. He is very naive. Knaive. And the postmaster, he is very helping. He is very kind-hearted. He is very jolly-hearted, cheerful. So the whole story revolves around these two characters. The lesson started. The house, the only one house in the entire valley, set on the crest of a low hill. हालांकि कल हमने 2-3 पैराग्राफ कर लिए थे. मैं आपसे बस क्वेश्चन पूछूंगी 2-3 पैराग्राफ से रिलेटेड. आफ्टर दैट वी शैल स्टार्ट द 4th पैराग्राफ. Where Lencho's house was situated? Where Lencho's house was situated, Dev? On the crest of a low hill. What Lencho was waiting for? Very earnestly. What Lencho was waiting for very earnestly? He was waiting for rains. Why? Because his fields badly needed rain. उसके खेतों को पानी की बहुत आवश्यकता थी. That's why he was waiting for the rain very earnestly. Next, what was his wife doing when he said to his wife, today we are going to have some waters? What was his wife doing at that time? At that time, what his wife was doing? Mohit? लगता है पढ़ा नहीं कल तुमने. She was preparing supper. The older boys, what they were doing? They were working in the field. What the smaller ones doing? They were playing near the fields. And as Lencho had predicted कि today it would rain, इसको नींद आ रही है. क्या नाम है इसका? अंकुर खड़े हो जाओ. सब रिकॉर्ड हो रहा है बेटा. अरे ये YouTube पे डल गया तो तुम्हारी शामत है. और डलेगा. मैं तो ओरिजिनल पढ़ाती हूँ. गो एंड वॉश योर फेस. YouTube पे डाल दिया तो तेरी मजाक पड़ेगी. Yes. So what Lencho had predicted? Today we are going to have some rains. Why? Because the weather was cloudy in the northeast direction. And as Lencho had predicted, the rain started. And at that time, when the rain started, at that time, Lencho and his family were having their dinner. Lencho and his family were having their dinner. So Lencho left his dinner and he came out of his house. Why? Just to have the pleasure of rain on his body. He was extremely happy and he compared the raindrops with the 10-cent pieces. The big drops were like 10-cent pieces and the smaller drops were like 5-cent pieces. Why he compared them with the coins? Because उसे पता था कि यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी. फसल अच्छी होगी तो उसको मार्केट में जब वो ले जाकर बेचेगा तो उसका अच्छा खासा कीमत मिलेगा. ये क्वेश्चन कई बार आता है
कि why did Lencho compare the big drops of rain to the 10-cent pieces and the smaller drops of rain to the 5-cent pieces? Why? You know the answer now. So yesterday we had completed up to here. कल यहाँ तक हमने complete कर लिया था. Sit down. Now we are going to start paragraph 3. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. And you know that now Lencho was very satisfied, very happy, because the rain had started. And with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. Draped means covered. He saw that his fields were covered with the curtain of rain. उसने देखा कि उसके जो खेत हैं वो किसकी चादर से ढक गए थे? बारिश की चादर से. ऐसा लग रहा था मानो कि उसके खेतों ने बारिश की चादर ओढ़ ली. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अभी तक लेंचो is very happy क्योंकि बारिश हो गई थी और उसके खेतों को पानी की बहुत आवश्यकता थी. अभी तक लेंचो is very happy, but now suddenly what happened? The rain was turned into a strong wind to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अब क्या हुआ बच्चों? बहुत तेज तूफान चलने लगा. And not only tufan, not only the strong gale, strong wind, along with the strong wind, the hailstorm started. Hailstorm means, बोलो, ओलों का तूफान, ओले गिरने लगे. And you know that hails are very, very harmful for the crop. यदि आपकी फसल उगी हुई है और ओले पड़ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या दशा होगी क्रॉप की. बारिश की जरूरत थी उसके खेतों को, लेकिन ओलों की जरूरत नहीं थी. तो सडनली व्हाट हैपेंड बच्चों? द हेल स्टॉर्म स्टार्टेड. द स्ट्रॉन्ग gale means heavy storm. हैवी तूफान शुरू हो गया, ओलों की बारिश शुरू हो गई. एंड नाउ लेंचो वाज वेरी सैड. बेचारा लेंचो, he was very sad. These truly did resemble new silver coins. देखिए, in this line, the hails have been compared to the new silver coins. किससे कंपैरिजन किया गया है? न्यू सिल्वर कॉइन्स. ऐसे ही तो लगते हैं मानो चांदी के सिक्के हो, बर्फ के गोले जो होते हैं कैसे लगते हैं? मानो कोई चांदी के मोती हो. सिल्वर कॉइन्स की तरह वो नजर आ रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. The hail have been compared to the frozen pearls. Frozen means जमे हुए, pearls means मोती. अब you know, जब ओले पड़ते हैं तो छोटे बच्चों को बड़ी खुशी लगती है, वो बाहर दौड़ते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं. लेकिन किसान के दिल से पूछो बच्चा, आपका हार्वेस्ट, आपका फसल बिल्कुल तैयार है, कटने के लिए तैयार है, और ओला पड़ जाए, आपका धान तैयार, आपका गेहूं तैयार है और ओला पड़ जाए, तो किसान पे क्या बीतेगी बच्चों? द सेम फीलिंग लेंचो हैड, बट हिज सन्स, जो छोटे छोटे बालक थे उसके, व्हाट डिड दे डू? दे केम आउट टू कलेक्ट दोज फ्रोजन पर्ल्स. व्हाट इज फ्रोजन पर्ल्स? फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती. The hail have been compared with the frozen pearls. It is really getting bad now, exclaimed the man. Who is the man? Lencho. Lencho says, oh my God, it is really getting bad now. ये तो बहुत बुरा हो रहा है. मैंने बारिश चाहिए थी, ओले नहीं. It is getting very bad now. I hope it passes quickly. Oh my God, it is really getting very bad now. Hey ईश्वर, please stop it. I hope, मैं आशा करता हूं ये तूफान जल्दी गुजर जाए. But it did not pass quickly. नहीं गुजरा वो तूफान बच्चों. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. For an hour,
और ओलों की बरसात भी ये नहीं कि 5 मिनट हो जाती, फॉर 1 hour द हेल रेन्ड। ओलों की बरसात लगभग कितने देर तक हुई? 1 घंटे तक बचा। और 1 घंटे तक ओले पड़ जाएं, द होल क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड। एंड द सेम थिंग हैपेंड with Lancho's fields. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. His cornfield was totally covered with the hails. His garden, his house, the hillside, everywhere there were hails and hails. हर जगह ओले ही ओले, ओले ही ओले। The field was white as if covered with salt. पूरा का पूरा खेत बच्चों सफेद हो गया। किस चीज से? ओलों से। The whole field was white as if covered with salt. मानो कि उसके खेतों ने नमक की चादर ओढ़ ली। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. And now Lencho was extremely sad. Lencho बहुत दुखी हो गए बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले he was so happy. When the rain started, he was so happy that leaving his dinner, he came out just to have the pleasure of rain on his body. But now, his whole crop was destroyed. पूरी की पूरी फसल उसकी बच्चों डिस्ट्रॉय हो गई। Not a leaf remained on the trees. एक पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा। His corn was totally destroyed, totally damaged. The flowers were gone from the plants. No flowers were on the plants. No leaves were on the trees. No flowers were on the plants. Lencho's soul was filled with sadness. खड़े हो जाओ शिवांश। क्या कर रहे थे रात भर? खड़े रहिए। यू आर हैविंग बुक है आपके पास? विदाउट बुक यू हैव कम। सिट विद अयान। You are not serious, beta. One day you will have to pay. Pay करना पड़ेगा. In February, when your board exams will begin, you will have to pay. If you do not listen to your teacher in the class carefully, so you will have to pay. Yes. So not a leaf remained on the tree, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants, and Lencho's soul was filled with sadness. Why, बच्चों? Why his soul was filled with sadness? उसकी आत्मा दुखी हो गई। क्यों? Because his total crop was damaged. किसान की तो बच्चों, ये किसान का तो क्या कहते हैं, मेन आत्मा अपनी फसल में बसी हुई होती है। उसकी तो जैसे मानो आत्मा ही निकल गई उसके शरीर से। His soul was filled with sadness when the storm had passed after 1 hour. 1 घंटे बाद तूफान रुका। Lencho stood in the middle of the field and said to his sons. 1 घंटे बाद तूफान रुका। लेंचो अपने खेत में जाकर खड़ा हो गया। And he said to his older sons, अपने बड़े बेटों से उसने क्या कहा? A plague of locusts. You know the meaning of locusts? टिड्डे देखे हैं हरे वाले जो होते हैं, बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। So a plague of locusts would have left more than this. So standing in the middle of the field, Lencho said to his sons कि बेटा अगर टिड्डी दल भी आक्रमण करता ना मेरी फसलों पे, वे भी कुछ खाने के लिए हमें छोड़ जाता। But the hail had left nothing. इन ओलों के तूफान ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। What we will do now? The hail has left nothing. This year we will have no corn. इस साल हमारे कोई कॉर्न की फसल नहीं होगी। Now the night was a sorrowful one. वो पूरी रात सबके लिए बड़ी sorrowful थी बच्चों। Everybody in his family was very sad. You know why? क्यों sad थे?
क्योंकि उनके जीवन का जो आधार था, द सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड वॉज देयर क्रॉप, एंड देयर क्रॉप वॉज टोटली डैमेज्ड. सो एवरीबडी वॉज वेरी सैड. One of the members said, all our work for nothing. एक फैमिली मेंबर ने क्या किया कि हमने पूरे साल काम किया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला. Our crop is destroyed. The second one says there is no one who can help us. है कोई इस दुनिया में जो हमारी मदद कर सके? क्योंकि जब विपत्ति आती है तो सबसे पहले अपने ही रिश्तेदार मुंह मोड़ते हैं बच्चों. एक कहावत है क्या कि when your purse is full, ये पर्स, when your purse is full, तो friends are plenty. Plenty means a lot of friends you have when your purse is full. So when your purse is full, friends are plenty. But when it is empty, तो none out of plenty. समझ में आ गया? जब आपका पर्स फुल होता है तो बहुत सारे दोस्त आपके साथ होते हैं, चल यार मजे करने चलते हैं, चलो कॉफी पीते हैं, चलो ये खाते हैं, चलो पिज्जा बर्गर खाते हैं. पता है दोस्तों को कि जेब में इसकी नोट है. बट व्हेन योर पर्स इज एम्प्टी, तो एक नहीं बचता, नन आउट ऑफ प्लेंटी. तो इसलिए उसके फैमिली मेंबर क्या कह रहा है कि ऑल देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई हमारी मदद नहीं करे. इन दिस सिचुएशन we will all go hungry this year. हम लोग इस साल भूखे रहेंगे. So they are all said exclamations of his family members. सबके सब बड़े दुखी हैं बच्चों. कोई कह रहा है कि पूरे साल काम किया कुछ नहीं मिला. किसी ने कहा कि nobody would help us in this situation, now we are poor. And one of them said कि we will all go hungry this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन लेंचो की फैमिली की, लेंचो की एक विशेषता थी बच्चों, that they had a great positive attitude. जब आपका लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए तो लीव एवरीथिंग ऑन गॉड. ईश्वर पे छोड़ दो. ईश्वर एक ना एक रास्ता जरूर खोल के रखता है. और ये चीज मैंने पर्सनली महसूस की है. अभी तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है थोड़ा सा, तो वन डे आई विल टेल यू कि पर्सनली मैंने महसूस किया है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लीव एवरीथिंग ऑन गॉड. सब ठीक कर देंगे. नेवर बी डिसअपॉइंटेड बच्चों, चाहे कितनी ही कठिनाइयां आए. Always think कि God is in his heaven and all is right with the world. Always have this attitude in your mind कि ईश्वर है ऊपर और जो कुछ होगा सब सही होगा. God is in his heaven and all is right with the world. तो लेंचो की फैमिली की सबसे बड़ी विशेषता थी that they had a great positive attitude and they had a great faith in God. Our chapter is based on this theme कि faith can move mountains. They had a great faith in God. उनका गॉड में बड़ा विश्वास था. सब कुछ खत्म हो गया but still they had a faith कि in this situation nobody would help us but God is watching everything. ईश्वर तो सब देख रहा है ना. Definitely he would help us. वो हमारी मदद करेगा. उसको सब पता है. सब लोग मुंह मोड़ लेंगे, वो नहीं मोड़ेगा. लीव एवरीथिंग ऑन हिम. सो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के दिलों में एक आशा की किरण अभी भी बची थी. नॉट ओनली बच्चों, केवल लेंचो ही पॉजिटिव नहीं था, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स वर वेरी पॉजिटिव. दे हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, and that hope was from God. Definitely God is going to help us in this drastic situation. जब लेंचो ने देखा कि all my family members are very sad, तो he consoled them.
सांत्वना देता है और क्या कहता है, डोंट बी सो अपसेट माई डियर, मेरे बच्चों प्लीज डोंट बी सो स्ट्रेस्ड, डोंट बी सो होपलेस, डोंट बी सो अपसेट, even though this seems like a total loss. I agree that there is total loss of our crop, हमारी क्रॉप का टोटल लॉस हो गया है, बट रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता, दुनिया में जो मरा वो खा के मरा, भूखा कोई नहीं मरा बच्चा। हम भूखे कम से कम 40 दिन तक रह सकते हैं, 40 डेज तक हमारी बॉडी भूखा रह सकती है, इतना फैट हम लोगों के अंदर होता है। जो भी मरता है खा के मरता है, बिना खाए कोई नहीं। ज्यादा खा लीजिए बच्चों, ओवर ईटिंग हो जाएगी, गैस बन जाएगी, ज्यादा खा के मोटापा आ जाएगा, और मोटापा सारी बीमारियों की जड़ है बच्चों। हार्ट की बीमारी, पेट की बीमारी, सारी बीमारी कैसे होती है, ज्यादा खाने से। तो जो मरा खा के मरा, बिना खाए कोई ना मरा। यस, सो रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी माय डियर, प्लीज डोंट बी अपसेट। समझ में आ रहा है सबको? ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात बच्चों लेंचो सिर्फ एक ही बात के बारे में सोचता रहा, क्या? ओनली वन होप, व्हाट होप? द हेल्प फ्रॉम गॉड, कि कोई ना कोई मदद करे ना करे, कोई मदद करे या ना करे, माई गॉड विल डेफिनेटली हेल्प मी। सो दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही तो लोग कहते हैं कि आज तक भूखा कोई नहीं मरा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed sees everything। लेंचो को बचपन से ही ये सिखाया गया था कि बेटा कैसी भी सिचुएशन हो, डोंट लूज योर होप्स, चाहे कितना ही स्ट्रेस जीवन में आ जाए, डोंट लूज योर होप्स, क्योंकि एक है जिसकी आंखें हमेशा हमें देखती हैं। कौन है बच्चों? दैट आर द आईज ऑफ गॉड। तो since his childhood Lencho had been instructed that God sees everything, ईश्वर सब जगह है, he sees everything, he is omniscient, he is omnipotent, he is omnipresent। ये तीन चीजें ईश्वर के लिए, लिख लीजिए तीनों शब्द। Since his childhood Lencho had been instructed, बचपन से ही लेंचो के परिवार वालों ने लेंचो को क्या सिखाया था कि बेटा डोंट बी अपसेट इन एनी सिचुएशन, लीव एवरीथिंग ऑन गॉड, बिकॉज गॉड इज ओमनीशिएंट। बहुत प्यारा वर्ड है ओमनीशिएंट, OMNISCIENT, गॉड इज ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट मीन्स हु कैन सी एवरीथिंग, जो सब कुछ देख सकता है, ईश्वर सब कुछ देख सकता है। सेकेंड इज गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मीन्स हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। एंड द थर्ड इज ओमनीप्रेजेंट, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। Omnipresent means who is present everywhere, जो सब जगह व्याप्त है। इसलिए बेटा उसके परिवार वालों ने सिखाया था चिंता मत करना, गॉड सीज एवरीथिंग, ही वेट्स एंड वॉचेस, इंतजार करता है, ही देखता है, इंतजार करता है, सही समय आने पर सही फल हमको देता है। तो इसलिए स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लो, ऐसा उसके परिवार वालों ने उसको बचपन से सिखाया था कि गॉड इज omniscient, God is omnipotent, and God is omnipresent. So don't take any tension, leave everything on God. So whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one conscience। ये भी तो देखो, ईश्वर वो भी जान लेता है जो आपके दिल में, आप दुनिया से अपनी सारी चीजें छुपा सकते हो,
लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपता। क्यों नहीं छुपता? बिकॉज गॉड इज हियर। गॉड इज हियर। गॉड हमारे कॉन्शियस में रहता है। कॉन्शियस हमारी अंतरात्मा में रहता है। सर आपका पीरियड है? आप पढ़ाइए मैम, जब पढ़ा लेंगे हमको इन्फॉर्म कर दें। बस मैं छोड़ रही हूँ। नहीं, आप आराम से पढ़ाइए। यस। तो इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस, जो आपकी अंतरात्मा में है ना, ईश्वर वो भी जान लेता है। आप हर एक से अपने कार्य छुपा सकते हैं, अपनी अंतरात्मा से नहीं छुपा सकते। बताइए, छुपा सकते हैं? अगर आप गलत करते हैं, आप धोखा दे सकते हैं दुनिया को, अपने टीचर्स को, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। शिवांश को नींद आ रही है, इसकी आंखें ऐसे ऐसे चढ़ रही हैं ऊपर को, मुझे पता है और तुम्हें भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं। मुझे नींद आ रही है, मुझे जाना चाहिए बाहर, फेस वॉश करके आना चाहिए। पता नहीं तुम लोगों को नींद कैसे आती है सुबह सुबह, रात भर या तो सोते नहीं हो या मोबाइल चलाते हो, क्या करते हो? बी एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग। गर्मी तो सबके लिए, मेरे लिए भी है। यस। क्या क्या कह रहे थे? यस, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस, जो आपके अंतरात्मा में होता है, ईश्वर उसे भी जान लेता है। आप सबसे चीजें छुपा सकते हो, भगवान से नहीं छुपा सकते। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले बात मेरी गांठ बांध लो बच्चों। जब भी कोई कार्य आप करने चलो, एक बार अपने कॉन्शियस से बात कर लो, अपनी अंतरात्मा से बात कर लो, देव कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं, क्या वो सही है? अगर आपकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि देव बेटा तू जो करने जा रहा है वो सही है, तो गो ऑन दैट वे। बट इफ योर इनर कॉन्शियस डज नॉट परमिट, लीव दैट वे। अंतरात्मा कह रही नहीं बेटा देव तुम इस रास्ते पे चलोगे तो पत्थर ही पत्थर हैं, कांटे ही कांटे हैं, मत चल इस रास्ते पे। ईश्वर हमें आगाह करता है, कॉन्शियस अंतरात्मा हमें आगाह करती है। अगर अंतरात्मा ना होती ना बच्चों ये चीज, तो पूरी दुनिया गलत काम करती है। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, तभी हम गलत काम करने से बच जाते हैं। और एक छोटा सा बच्चे को भी ये एहसास होने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। Those who do not listen to the voice of their inner conscience, only those go on the path of astray. जो अपने अंतरात्मा की आवाजों को नहीं सुनते हैं, वही गलत रास्ते पर जाते हैं। Those who listen to the voice of their inner conscience, they never go astray. Astray means पथभ्रष्ट होना, गलत रास्ते पर जाना। They never go on the path of astray. They never go astray. Why? Because the voice of conscience is the voice of God. अंतरात्मा की आवाज किसकी आवाज होती है? ईश्वर की आवाज होती है। और ईश्वर की आवाज कभी भी गलत नहीं होती। आप कभी सोचिएगा, कभी आपने भी महसूस किया होगा कि मैं गलत काम कर रहा हूं, क्या ये सही है या नहीं? आती है ना अंतरात्मा से आवाज। अब सुबह प्रिंसिपल सर ने मॉर्निंग असेंबली में भी कहा था, बेटा गेट के बाहर निकलते ही लाइफ अनसेफ है। जो बच्चे अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनते, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वही बाहर जाते हैं, फिर कांड होते हैं। इसलिए टीचर्स की आवाज जो होती है वो भी समझो ईश्वर की आवाज है, पेरेंट्स की आवाज भी समझो ईश्वर की आवाज है। मम्मी पापा टीचर्स वो क्या है? दे आर लाइक गॉड फॉर यू, लेकिन मानते नहीं हो। इसलिए आज की युवा पीढ़ी जो है वो एस्ट्रे जा रही, पथभ्रष्ट हो रही। If you listen to the voice of your conscience, to the voice of God, to the voice of your teachers, to the voice of your parents, आप कभी गलत नहीं हो सकते बच्चे। You will never go astray in your life. इसलिए उनका कहना मानिए, अपनी अंतरात्मा का कहना मानिए, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का। Your life will be very glorious, full of achievements. चलिए आज यहीं तक करते हैं, फिर सेकंड पार्ट हम कल से शुरू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, ठीक है? ओके।